Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex and what an expiry it was today. We will definitely discuss it in detail when we come on the 15 minutes in Nifty charts. For now, we have completed the April series as per the options. From tomorrow, we'll be starting the May series. So here you can clearly see that the April series as such closed on a high note. Of course, this candle will be, the monthly closing will happen only after 30th of April. But right now it looks like the bullish momentum still continues. Again on the weekly chart, if you guys remember, yes, we were saying this long wick on the lower side clearly indicates buyers presence, which means buyers were trying to support Nifty at lower levels, and you can clearly see how it actually moved post that. So in the daily time frame, what we can clearly see, yesterday it was more of a, I will not say exact inside bar, but yes, if you just ignore this upper wick, then it was more of an inside bar, opened with the gap down, did some volatility and closed right at day high, and it, in fact, it actually covered this gap also, and it has actually closed above that particular gap, which is above 20 to 500 levels, roughly almost 600. And but due to the expiry, again, some sort of a volatility towards the end, it actually closed way about 20 to 570. So far very good going in case of Nifty, Bank Nifty. The moment we open with the gap down, we have seen massive buying. It clearly indicates that the buyers are yet strong. Okay, so on the 15 minute, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रहा है आज. अगर आप लोग निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करो पिछले दो एक्सपायरी से, आई वुड से थिंग्स हैव बीन रियली ब्रूटल. So it opened gap up, went all the way up, took resistance of previous day high, again came crashing down. The problem is whenever this kind of movement happens, the puts spike immediately. Now people who have brought down their calls looking at this fall immediately got a spike thereafter. Let's say somehow they managed that also, and then for a while Nifty was very silent, was doing nothing, and then this was the blast move in case of Nifty. I'm sure you would have seen the premiums were not cooling off at least till 2 p.m. to 2:20 p.m. and it was a very exciting expiry, I would say. See, in the last expiry, in case of Nifty expiry, we did lose money because of the weird moves. So that's the reason we have taken a stand of not playing expiry. And even if we play, we will try to be very far and we will manage it that way. So this time we didn't get caught into this kind of a move and we did made money in case of Nifty expiry. But I would say the expiry is becoming difficult. I don't know whether it is Jane Street or Millennium Capital or whatsoever, whoever is trying to manage these things, it is becoming very difficult. Especially, I mean, who would have thought, like, people all this while were discussing that expiries of low liquidity expiries like Fin Nifty, Mid Cap Nifty, those would be very volatile given they have less liquidity and it is easier to manipulate. But now this is the main index like Nifty. Who would have thought, like, this has got well liquidity and still this can be managed? It's really bothering. The trade plan for tomorrow, so simple trade plan, अगर हम लोग flat open होते हैं, which is roughly 20 to 540 के बीच से लेकर 20 to 580 के बीच में अगर हम ओपन होते हैं, विच इज अ फ्लैट ओपनिंग, इन दैट केस व्हाट वी विल ट्राई टू डू, ये यहाँ पर नीचे ये दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट बिकॉज वाई दिस वाज एक्टिंग एज अ resistance quite some time and we got a breakout, and this I'm expecting to act as a support, which is 20 to 450 zones. If it tries to come down, let it come down here and then you can take a reversal or a bullish position and then it might go to this level. But like in that case, what I'm expecting, if it opens flat and then tries to come down, then strangle can be played out. If you want to be with the trend, then try to buy on dips. Like this was the dip, right? So you have to buy on the dips. You can't buy at this level, and because the problem is, see, in this case the momentum has happened this way. Now where could be your like, just imagine, where can you keep your SLs? You can't keep your SL here because this is when the momentum is happening. So the only swing low you can see is here or here, which becomes, the risk reward becomes very unfavorable. So that's the reason I would say, if you want to buy, just buy the dip. Now scenario 2, if we open with a gap up, which looks most likely given the kind of closing in case of Nifty. Let's say we open above 600, 650. In this case, then we'll try to come down a bit and then might take support of this closing price and then we might try to go up. That's what I'm thinking in case of a mega gap up. In case of a mega gap down, I'm expecting clear cut strangles.
nothing else. In case of a gap down, which would be around, if it opens around this level, then I'm expecting market to take some sort of a support, but it might come till here and then, you know, move like this way. Strangles might play out. If you, again I'm saying, if you want to play the entire trend, then try to buy on meaningful dips. Yesterday also I had given this level. You can go and check on my Twitter timeline. I have mentioned these levels. For those of you who feel that I am like marking after every 50 minutes, you can actually see how this 300 level acted very strongly. Market opened exactly somewhere here at around 300 350 levels, took the support of 300 and then immediately bounced back. So that's the reason I'm saying the levels are important. It's not that, you know, after every 50 points I have marked those levels. Now if you technically see, there are only 3 levels to, you know, to be conquered to reach to the new highs. One is this today's high, the other one is around 720, and the last one is 770 800. After that, after 770 itself, we'll be trading at blue sky zones. The thing is, today the momentum has been very strong and very big. तो अगर 2-3 दिन अगर कंसोलिडेशन के लिए भी जाती है तो इट विल बी गुड. तो जब तक ये वाली लो, आज की लो नहीं टूटती है, आपको हर एक डिप बाय कर सकते हो अगर आपको पूरा ट्रेंड प्ले आउट करना है. और जब तक ये वाली लो नहीं ब्रेक करती है, मतलब देयर इज नो रीजन टू बिकम बेरिश एज सच. ओके, साइडवेज कैन बी प्लेड आउट बिकॉज 1-2 दिन के लिए बस, दैट्स इट, नॉट मोर. एंड रिमेंबर सैटरडे को रिजल्ट्स है आईसीआईसीआई बैंक की. सो अगर आप लोग कल ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे हो तो उस हिसाब से अपना प्लान रिस्क प्लान करके जाइएगा. और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं था कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आ रही है, तो हियर इट इज, आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट्स आने वाली है सैटरडे को. अगर आपको नहीं कैरी करना है तो प्लीज स्टे अवे. बिफोर डिस्कसिंग बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर कमिंग अप विद एन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वर्कशॉप. और ये अगर आपको सीखना है, आप एनरोल कर सकते हो. मैं डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये उन्हीं के लिए है जो लोग इंटरेस्टेड है और जिनके पास अच्छी कैपिटल है. एंड इट इज ओनली ऑप्शन सेलिंग वर्कशॉप. सो फॉर दोस ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर ऑप्शन बाइंग, दिस इज डेफिनेटली नॉट ऑप्शन बाइंग. हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे हैं इसमें, हम वही सिखा रहे जो हम कर रहे हैं. तो वी विल बी शेयरिंग आवर सेटअप्स एंड ऑल. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दिस आउट. चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं. अगर आप लोग को याद होगा, मैंने कहा था बैंक निफ्टी में ये हायर रेंज के यहाँ पर होवर कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा है. और अगर आप देखोगे ये वापस उधर ही है, उसी के आसपास है, ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है. राइट, अभी भी इंटैक्ट है. इसके लिए मैं आप लोगों को कह रही थी, आप लोगों ने मेरे हर एक मल्टी टाइम फ्रेम पे देखा होगा, मैं कहती थी कि मंथली टाइम फ्रेम जो भी एसआईपी है, जो भी आपके पोर्टफोलियो है, आप प्लीज मत बेचेगा. देयर इज नथिंग बेरिश, जस्ट बी विद द फ्लो. थोड़ा बहुत अगर नीचे आएगा तो दैट इज ओके, बट ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है. और ये देखिए, ये हमारी जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल की जो ब्रेकआउट है वो भी अभी तक वैलिड है. और हम देखते हैं कि कैसा इट विल प्ले आउट. सो फार सो गुड. ये वीक में हमने ये वाली गैप को भर भी दिया है अब तक. अब कल देखेंगे, क्योंकि कल हमारे लिए वीकली क्लोजिंग आएगी. डेली में अगर आप देखोगे तो अगेन ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ब्रेकआउट हुआ है. ये क्लासिक एग्जाम्पल है. देखिएगा आप, यहाँ पर बड़े बड़े गैप से जब भी मार्केट ने ओपन किया है, ये बाइंग में आई है. अब देखिएगा, ये वाला दिन, उस दिन इसराइल और ईरान की वॉर के बारे में कोई बातचीत चल रही थी और मार्केट ने गैप डाउन खुला और सिंगल साइड अप मूव दिया है. दिस वाज लास्ट फ्राइडे और ये आज थर्सडे, जहां पर हम लोग कोटक बैंक में जो नेगेटिव न्यूज के कारण कोटक जो 10% ओपनिंग में ही था, उसकी वजह से मेगा गैप डाउन से खुले हम लोग. बट आप देखिएगा बाकी सारे बैंक्स ने क्या शानदार परफॉर्म किया. मतलब सारे के सारे बैंक्स इतने, मतलब 5-6%, एसबीआई 5%. अच्छा, एक्सिस बैंक का तो रिजल्ट आया था जो बहुत अच्छा था, 6% अप. ये सब बैंक्स ने इतना अच्छा मूव किया है. क्लियरली दिख रहा है कि मतलब यहाँ से ये जो भी बैंक्स का एलोकेशन है, कोटक से कोई और बैंक्स के लिए जा रहा है, वो तो क्लियरली एलोकेशन दिख रहा है, स्विच इन द एलोकेशन. और आप देखोगे कि ये बड़े गैप्स को बायर्स यूज कर रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड. और ये इनसाइड बार ब्रेकआउट हो चुकी है. अब जब तक ये वाली लो नहीं ब्रेक होती है, तब तक हमको देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश अनलेस वी ब्रेक बिलो टुडेज लो विच इज 47,700 के आसपास. ठीक है. और अगर आप लोगों को बुलिश एनगल्फिंग के बारे में जानना है तो प्लीज स्टे ट्यून ड्यूरिंग दिस वीकेंड. हम ये वीकेंड को एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आएंगे बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर, एंड आदित्य विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट बुलिश एनगल्फिंग. तो अभी चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे.
जितनी निफ्टी वॉलेटाइल थी उतनी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल नहीं थी। एंड आई विल शो यू कि क्या हुआ था। बैंक निफ्टी ऐसे तो जरूर गई, ऐसे एम पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने एम का ब्रेकडाउन कभी नहीं दिया। और इनफैक्ट उसने ये वाले जो हाई को बहुत बहुत बार मल्टीपल टेस्टेड था, ये परसों के दिन टेस्टेड था, आज 2 बार टेस्ट हुआ, उसको सीधा वन साइडेड निकाल दिया और फिर ऊपर की तरफ जाते रहा। बट इस प्रोसेस में उसने एम तो नहीं बनाया, बट उसने क्या किया, उसने यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया है। अब पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट के जो 2 टारगेट्स है, उसके फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, दूसरी टारगेट है 48,900। मतलब मैं आप लोग को बता दूं, ये सब बहुत छोटे छोटे टारगेट्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी में नया है, बनना बाकी है। और अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे, एक्सिस के तो बहुत बढ़िया थे। अब हमें ये सैटरडे को आईसीआईसीआई का भी आएगा, और जिस हिसाब से एसबीआई मूव कर रहा है, जो कि आज उसने नया हाई मारा है 800 के ऊपर, 812 वगैरह कुछ है, 812। तो वो भी मतलब मोमेंटम में है। तो जिस हिसाब से अगर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में अच्छी मोमेंटम आने वाली है आने वाले दिनों में। अब और अगर आप लोग को पता है तो मतलब ये इलेक्शन वाला भी पीरियड, हम लोग वी आर एंटरिंग इनटू द इलेक्शन फेज एज वेल, तो द मोमेंटम आई एम एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू। तो ये छोटे टारगेट से 15 मिनट वाले जो छोटे पैटर्न है उसके हिसाब से ये। अब हमें कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए हम, जैसे मैंने कहा कि जब तक आज का लो नहीं ब्रेक होता जो कि 47,700 है, देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश। नाउ this will act as immediate support, which is 48,270 से लेके 48,300। if at all we open a flat around 48,400 के आसपास या 48,500 के आसपास, and then if market tries to come down a bit, let it come, this is a good place to enter into longs। बट आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो लॉन्ग्स के लिए, और फिर आप प्ले कर सकते हो। अभी आप याद रखिएगा, अगर आप लोग को पूरा ट्रेंड प्ले आउट करना है तो इट इज बाय ऑन डिप्स को बाय किया कीजिएगा। अब अगर आपने बीच में अगर बाय किया होगा, ये आपके पास ढंग का कोई सपोर्ट मतलब कोई एसएल लगाने के लिए है नहीं। डायरेक्टली ये वाली लेवल आती है 48,000 के आसपास की, 48,100 के आसपास की। तो अगर आप ओके हो उतना रिस्क लेने के लिए या क्वांटिटी कम करते हो, तो फिर देन यू कैन गो हेड। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप वेट फॉर मीनिंगफुल डिप्स, जैसे ये वाले अच्छे डिप है तो उस पर आप लॉन्ग जा सकते हो। और अगर जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई, ये थोड़ी सी लग रही है, और जैसे कि मतलब आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जो कि न्यू 52 वीक हाई पे चल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप होने के चांसेस है। अगर गैप अप होते हैं हम लोग समवेयर अराउंड 48,800 के आसपास अगर, तो यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये वाले लेवल तक आ सकते हैं 48,600 या 500 तक, और फिर मतलब थोड़ा वॉलेटाइल होने के चांसेस है। अगर मार्केट गैप डाउन, बड़े वाले गैप डाउन से खुल जाता है, मतलब 300 वगैरह खुल जाता है, तो यहाँ से वापस बाइंग आएगी क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट है। बट अगर उससे भी ज्यादा गैप डाउन से खुलती है समवेयर अराउंड दिस जोन, तो फिर स्ट्रैंगल में प्ले आउट होगा। बट एज आई सेड, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, आज का लो जब तक नहीं टूटता है, देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश। तो सिंपल ही एनालिसिस है। और याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर वीक में हमारे लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को है, because Wednesday being a Maharashtra day, we have a holiday. So now let's quickly go to Sensex, because कल Sensex की एक्सपायरी भी है। Sensex में भी बड़ा ही सिंपल है, ये वाली जो इमीडिएट सपोर्ट है 74,000 के आसपास एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। अगर वहां पर प्राइसेस आता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, वो वाली जोन बहुत ही अच्छी जोन है, प्रोवाइडेड यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो यहाँ पर जस्ट ब्लाइंडली यू हैव टू गो लॉन्ग, यू हैव टू वेट फॉर द बुलिश रिवर्सल पैटर्न at this juncture, because see, this level has been tested several times and then we finally got a breakout above this level. So that's the reason I'm saying ki this might act as a good support. For those of you who are new and who are not able to understand how support and resistance work, please go and check our video on support and resistance which we have put in the channel. You will understand it better. अब चलते समझते हैं कि कल ओपन कहाँ पर होता है। Let's say we open with on a flat note around this zone, then you know we have to wait whether the market is breaking on the lower side, then wait it out, don't short it, let it come here. If you are seeing some reversal, then यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हो। और अगर मार्केट, मान लीजिएगा अगर मार्केट एक बहुत ही बड़ी गैप अप से ओपन होती है समवेयर अराउंड 74,700 के आसपास, तो देखिएगा 74,900 या राउंड नंबर जो है 75,000, दैट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कल के लिए। सिर्फ मैं ये कल के लिए बात कर रही हूँ, जो 0DT प्ले करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। दैट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और ये अच्छी एक सपोर्ट है 74,000 के आसपास। तो आप वैसा कोई रेंज के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हो। और अगर मान लीजिएगा कि कल बड़ी गैप डाउन से, अगर ये वाली गैप डाउन अगर इधर है और फिर यहाँ पर आप रिवर्सल देख सकते हो, ठीक है, बट गैप डाउन कोई बहुत ज्यादा है समवेयर अराउंड दिस जंक्चर, देन फिर आप क्लियरली स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो, ठीक है। कल क्योंकि 0DT है उसके लिए मैं कह रही हूँ, अदरवाइज मैं अभी भी कह रही हूँ इट इज क्लियरली अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। तो
देखिएगा, दिस इज हाउ इट आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो. अगर इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, अगर आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड विल सी यू सून दिस वीकेंड विद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. एंड आदित्य जल्दी ही बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर लेकर आ रहा है. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर वीडियोस. Take care, bye bye, and have a safe expiry. Bye bye, take care.